Hello friends, Kalrav School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson from the book It So Happened. There was chapter number 3, The Selfish Giant, in which we were already discussed in our part number video number 1 that already had been published. Those who hadn't seen that video, firstly go and watch that video. After that, if you see this video, so that you will get the idea about the story. Okay, in our part 1 we already discussed about the selfish giant and his nature and everything, which kind of the giant was there and how he stopped the children into his garden, okay, for play. And the same time the winter came out and it will never go. Winter जो आ जाता है वो कभी जाने का नाम नहीं लेता है, just because the children were not there. Okay, the giant was thought that why this kind of the situations was created, why God make the angry on me. Okay, but he didn't get any idea about the situation. Suddenly the situation had been changed, and what happened, everything we will see in this part. Let's see what is there. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with the birds and blossom. Whenever the children were come, बच्चे जब वापस आ जाते हैं तो उसकी खुशी मनाने के लिए, to celebrate their कम बैक. ओके, द ट्रीज जो झाड़ होते हैं वो क्या कर दिया उन्होंने, दे वर कवर्ड देमसेल्फ विद द बर्ड्स, और उन्होंने अपने आप को कवर्ड कर लिया बर्ड्स के साथ और फूलों से अपने आप को ढक दिया, फूलों की खुशबू से. दे वर कवर्ड देयर विद द ब्लोसम. द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक. जायंट वॉज डिलाइटेड मीन बहुत ही खुश हो जाता है. ओके, अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने बच्चों को देखकर. ही वॉज बिकम वेरी हैप्पी, स्पेशली अ लिटल बॉय हुम ही लव्ड डेयरली. एक छोटा सा बच्चा जिसको वो बहुत ही ज़्यादा डियरली, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा लगता था. दैट लिटल बॉय वॉज लाइक्ड बाय हिम वेरी मच. द लिटल बॉय सून disappeared only to return much later. जो छोटा सा लड़का जो था, द बॉय, लिटल बॉय, was soon disappeared का मीन होता है गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना. दैट इज कॉल्ड disappear. तो disappeared हो जाता है वो छोटा बच्चा. एंड देन आफ्टर ओनली टू रिटर्न मच लेटर, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वापिस आ जाता है. आफ्टर सम टाइम ही केम बैक. He show a most wonderful sight. He show means giant was a show a most wonderful sight. अद्भुत जो है वो साइट मतलब नज़ारा देखता है. Though a little hole in the wall, the children had crept in. एक छोटा सा हॉल होता है जिसके अंदर बच्चे जो है the children were crept in, मतलब वो छोटे से हॉल के अंदर बच्चे अंदर आ जाते हैं. Okay, and they were sitting in the branches of the tree. They were sitting मतलब वो बैठे रहते हैं. दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस. ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, डालियाँ, झाड़ की जो डालियाँ होती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांचेस. तो वो ब्रांचेस के ट्री के ऊपर बैठ जाते हैं. दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. एंड एवरी ट्री, हर एक झाड़ के ऊपर, दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटल चाइल्ड. जहाँ भी देखो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था. सारे बच्चे वापस आ जाते हैं गार्डन में. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ द children were playing, children were enjoying into the garden, and the tree were so glad to have the children back again that they had covered themselves with the blossom. और जो वृक्ष होते हैं, झाड़ होते हैं, वो भी बच्चों को वापस देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं. ओके, दे वर बिकम ऑल्सो हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन अगेन. फिर से बच्चों को देखकर वो खुश हो जाते हैं. एंड दे कवर देमसेल्फ विद द ब्लोसम, और अपने आप को फूलों से ढक देते हैं. और आगे क्या होता है, एंड दे वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबाउ द चिल्ड्रंस हेड. उनके जो आर्म्स होते हैं बराबर वो बच्चों के सिर के ऊपर वो रख देते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द जायंट, द सेल्फिश जायंट वाज देयर, एंड
the atmosphere of the garden was came back just because of the children came back into the garden, and they were enjoying, they were sitting on the branches of the trees, and trees also put it down the blossom, the birds you can see here in this picture. Okay, this kind of the enjoyment was done by the children. Okay, so the giant become happy to see the situations about the garden. The bird were flying about and ट्विचिंग विथ डिलाइट. बर्ड जो वहाँ से उड़ रहे थे, मतलब पक्षी जो वहाँ से जा रहे थे, वो खुश होकर एकदम क्या करने लगे, ट्विटरिंग. ट्विटरिंग मीन्स अ वॉइस केम आउट फ्रॉम द बर्ड्स व्हेन दे वर सिंगिंग. ओके, जब पंछी जो होते हैं वो कुछ बोलते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है उसको ट्विटरिंग कहा जाता है. विथ डिलाइट, खुश होकर वो भी ट्विलाइट करने लगे. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. फ्लावर्स जो थे वो ग्रीन ग्रास के अंदर से बाहर निकल के आए. द फ्लावर्स वर लुकिंग अप टू द ग्रीन ग्रास, जो अंदर छुप गए थे, और वो भी क्या करने लगे, लाफिंग करने लगे, हंसने लगे. इट वॉज अ लवली सीन. ये सीन बहुत ही लवली दिख रहा था, अद्भुत दिख रहा था. ओनली इन टू द कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. एक ही कॉर्नर था जिसके अंदर अभी तक क्या चल रहा था, विंटर चल रहा था. इट वॉज द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. वो जो था एक छोटा सा फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, मतलब कि बहुत ही एक सुनसान कॉर्नर था, एक बहुत दूर का कॉर्नर था, बराबर, एक फार अवे फ्रॉम द प्लेस. ओके, दैट इज कॉल्ड फर्दरेस्ट. तो बहुत दूर होता है उसको फर्दरेस्ट कहा जाता है, गार्डन से बहुत दूर था. एंड इन द एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटल बॉय. एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे खड़ा था. स्टैंडिंग मीन्स खड़ा रहना. ओके, छोटा सा बच्चा वहाँ पे खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड राउंड इट. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था. ही वॉज ट्राइंग बट ही कुड नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री. क्राइंग बिटरली. बहुत ही रो रहा था वो, क्योंकि ही कुड नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद द फ्रॉस्ट एंड स्नो. जो झाड़ था, वट एवर द ट्री वॉज देयर, इट इज ऑल्सो कवर्ड विद द फ्रॉस्ट. ओके, एंड द स्नो. And the north wind was blowing and roaming about in the wind that coming side from the north direction, it is also blowing and roaming about it. Climb up little boy, said the tree. Tree said to that little boy to climb on up. Okay, उनको चढ़ने के लिए वो कहती है. And it bent its branches. और tree अपने आप itself it bent its branches towards the low, so that little boy was क्लाइम ऑन द ट्री. छोटा सा बच्चा चढ़ सके, इसलिए वो डाली अपने आप झुक रही थी, नीचे झुक रही थी कि वो चढ़ जाए. एज लो एज इट इज, जितना हो सकता था वो भी कोशिश कर रही थी उसको चढ़ने के लिए. बट द बॉय वॉज टू टाइनी. लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा था. टाइनी मीन्स अ लिटल, स्मॉल. ठीक है. एंड द जायंट्स हार्ट मेंटेड एज ही लुकड आउट. जब जायंट इसको देखता है तो उसका हार्ट जो होता है मेंटेड, मतलब पिघल जाता है उसको देखकर. एज ही लुक्ड आउट. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. वो क्या सोचता है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हूँ. ही सेड, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. नाउ ही गॉट द रीजन वाई द स्प्रिंग कुड नॉट कम हियर. वो जान चुका है कि स्प्रिंग यहाँ पे क्यों नहीं आ रही थी. आई विल पुट दैट पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. वो क्या डिसीजन लेता है, आई विल पुट द पुअर लिटल बॉय, मैं छोटे से बच्चे को मैं कहाँ बिठा दूंगा, टू टॉप ऑन द ट्री. टॉप ऑन द ट्री के ऊपर बिठा दूंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, पूरी जो दीवार मैंने बड़ी बड़ी सी दीवार बनाई है उसको मैं तोड़ दूंगा. एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और मेरा जो मैदान है, मेरा जो गार्डन है, वो बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए हमेशा के लिए मैं खुला छोड़ दूंगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. अब उसको पछतावा हो रहा है कि उसने आज तक जो किया, बच्चों को खेलने नहीं दिया गार्डन में, उसके लिए ही वॉज फेल्ट वेरी सॉरी. उसके लिए उसको बहुत ही पश्चाताप होता है. सो ही क्रैप्ड द डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर सो सॉफ्टली. और वो धीरे से नीचे आ जाता है और उसके सामने जो एक बहुत बड़ा जो दरवाज़ा होता है वो धीरे से खोलता है. सॉफ्टली मतलब वेरी स्लोली. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. और वो गार्डन के बाहर चले जाता है. बट व्हेन द चिल्ड्रन शो हिम दे वर सो फ्रेगमेंटेड दैट दे ऑल रन अवे. लेकिन जैसे ही बच्चे उस राक्षस को देखते हैं वापस से वो डर जाते हैं. लेकिन
क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो दिखने में बहुत ही भयानक होता है। तो फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? डर जाना। ओके, दैट दे वर रन अवे, और वो वहाँ से क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, एंड एट द टाइम ऑफ द चिल्ड्रन केम आउट फ्रॉम दैट गार्डन द विंटर केम अगेन। मतलब जैसे ही बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, विंटर फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्प्रिंग सीजन किसके लिए आई थी? जस्ट बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। ओनली अ लिटल बॉय डिड नॉट रन। एक छोटा सा बच्चा होता है जो दौड़ नहीं पाता है उसको देखकर। फॉर हीज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंख में क्या थे? बहुत ज़्यादा टीयर्स थे, बहुत ज़्यादा टीयर्स। टीयर्स क्या होते हैं? आंसू होते हैं। वेन एवर वी क्राई द टीयर्स कम आउट फ्रॉम आवर आइज। ओके, सो दैट टीयर्स डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। उसको नहीं दिखता है कि जायंट उसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो उसको देख नहीं पाता है। ही कुडंट सी द जायंट। एक्चुअली में जायंट जो है वो कोई बच्चे को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं आता था, लेकिन जायंट इतना भयानक था कि बच्चे उसको देखकर डर गए थे। एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। जो जायंट होता है वो वहाँ पे आता है और बहुत ही प्यार से उसको अपने हाथों में उठा लेता है, बहुत ही प्यार से उसको अपने हाथ में ले लेता है और धीरे से अपने हाथ में उठा लेता है प्यार से। एंड पुट हिम ऑन टू द ट्री, और उस बच्चे को कहाँ बिठा देता है? पेड़ के ऊपर बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक्स वंस इनटू द ब्लोसम, एंड अगेन ट्री के ऊपर बहुत सारे फूल आ जाते हैं। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट, और बर्ड्स वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और गाना गाने लगते हैं। एंड द लिटल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज ओन आर्म फ्लगिंग देम राउंड द जायंट स्नेक, और छोटा सा बच्चा है वो जायंट से अब डर नहीं रहा था। उसने क्या किया? अपने दोनों हाथ फैलाकर, अपनी दोनों बाहें फैलाकर जो राक्षस था उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और जायंट को वो क्या करने लगा? चूमने लगा। ही किस्ड हिम मतलब उसको चूमने लगा जायंट को, उसको उसके डर नहीं लगी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर that little boy was playing with the giant, how small he was. okay, एक छोटे से हाथ में उसके जायंट के हाथ में वो आ गया था और जायंट से वो डर नहीं रहा था। he was playing with the giant, और उसके नेक यानी कि गर्दन पे हाथ फिरा रहा था, उसके मुंह पे ऊपर हाथ फिरा रहा था, उसको किस कर रहा था। and the other children when they show that the giant was not wicked any longer, अब दूसरे बच्चे ये सब देखते हैं, उसको लगता है कि राक्षस जो है वो अब खराब नहीं रहा। ठीक है, wicked मतलब बुरा, ओके, खराब। एंड नो केम रनिंग, और वो भी दौड़ के आ जाते हैं। एंड विथ देम केम टू अ स्प्रिंग, और जैसे ही वो लोग अंदर आ जाते हैं स्प्रिंग वापस आ जाती है। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट। जायंट उनको क्या कहता है कि ये गार्डन तुम लोगों का है, अब तुम इसके अंदर खेलो कूदो, जो भी करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, बिकॉज दिस इज़ योर गार्डन चिल्ड्रन। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और वो एक बहुत बड़ी कुहाड़ी लेता है। कुहाड़ी समझते हो? जो बराबर है जिससे खड्डा खोदा जाता है वो। एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और पूरी वॉल को क्या कर देता है? वो गिरा देता है उस एक्स से। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड अ जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन अ मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और जो दोपहर के अंदर जो लोग थे दे वेंट टू द मार्केट, वो बाजार जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि ये राक्षस जो है वो बहुत ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा सीन कि वो किसके साथ खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। दिस काइंड ऑफ सीन दे हैडंट सीन बिफोर। ऑल द डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन वो खेलते रहे। एंड इन टू इवनिंग दे केम टू द जायंट अ बीड हिम टू गुड बाय, और शाम होते ही उसको जायंट को गुड बाय करने के लिए बच्चे गए। बट देयर वॉज लिटल योर लिटल कंपेनियन ही सेड, वो अब क्या हुआ? उसने पूछा, जायंट ने पूछा कि भाई तुम्हारा छोटा सा लिटल कंपेनियन मतलब वो छोटा सा बच्चा है वो कहाँ गया? द लिटल आई पुट इनटू द ट्री, एक छोटा सा बच्चा जिसको मैंने ट्री के ऊपर चढ़ाया था, जिसकी वजह से तुम सब ने डरना छोड़ दिया था मुझसे, वो कहाँ है? द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जायंट उसको बहुत लव करता था, बहुत उसको पसंद था वो बच्चा, क्योंकि उसने उसको किस भी किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन उनको क्या आंसर देते हैं? वी डोंट नो, हमको नहीं पता है। ही हैज़ गॉन अवे, पता नहीं वो कहीं पे चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर दैट कम टुमारो, जायंट उनको क्या कहता है बच्चों को कि तुम सब उसको कहना, पक्का कहना, भूलना मत कि कल तू खेलने जरूर आना। सेड द जायंट, जायंट उनको कहता है।
बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चे वो कहते हैं कि उनको तो पता ही नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा कहाँ रहता है, वो तो अननोन स्ट्रेंज बच्चा था, हमको तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और हमने तो इस बच्चे को पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, पता नहीं वो कहाँ से आया था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और बच्चा कहाँ चला गया किसी को नहीं पता था, तो जायंट बहुत ही सैड हो जाता है, उदास। सैड का मतलब क्या होता है, उदास हो जाता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वॉज ओवर, जब भी दोपहर में स्कूल ओवर हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बच्चे आ जाते थे और जायंट के साथ क्या करते थे, खेलते थे। बट द लिटल बॉय होम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन छोटा सा बच्चा जो जायंट को बहुत पसंद था, जायंट उसको बहुत ज़्यादा लव करता था, वो फिर से कभी नहीं दिखा। द जायंट वॉज वेरी काइंड ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, जायंट बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर अ लिटल फ्रेंड, लेकिन उसको तो उस छोटे बच्चे से मिलना था, वो छोटा अपना दोस्त था जायंट का, वो उसको बहुत याद आता था। एंड ऑफन स्पोक ऑन ऑफ हिम, और वो हमेशा उसको बोलता था, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वो उसको क्या कहता था कि मैं उसको किस तरह से देख पाऊंगा, बराबर मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, कितना अच्छा होता कि शायद मैं उसको मिल पाता, कितना अच्छा हो जाता कि एक बार अगर वो बच्चा मुझे मिल जाता। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन टू द गार्डन, दे वर एंजॉइंग एंड द जायंट गेट द अपसेट, बराबर। अब जायंट जो है वो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यू कैन सी देयर वाज अ ओल्ड जायंट, बराबर बुढ़ा दिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो कि वो यंग दिख रहा है, बराबर। यहाँ पे उसकी ब्लैक कलर की बियर्ड है और यहाँ पे वाइट कलर की बियर्ड है, ठीक है। क्यों ऐसा हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर्स वेंट बाय, बहुत साल बीत गए, एंड द जायंट ग्रो वेरी ओल्ड एंड फेबल, जायंट जो है वो फेबल मतलब कमज़ोर हो गया और वो बुढ़ा भी हो गया था। ही कोड नॉट प्ले विद द एनीमोर, अब बुढ़ा होने की वजह से वो प्ले नहीं कर पाता था, खेल नहीं पाता था। सो ही सीट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द आर्म चेयर, ओके, दैट एवरीवन नोज व्हाट इज आर्म चेयर। आर्म चेयर क्या होती है, आराम करने की जो कुर्सी होती है उसको हम आर्म चेयर कहते हैं, तो वो वहाँ पे बैठ जाता था। एंड वो क्या करता था, एंड वॉच द चिल्ड्रन एट द गेम्स, और बच्चों को देखता रहता था कि कैसे वो बच्चे खेल रहे हैं। एंड एडमायर हिज गार्डन, और अपने गार्डन को देखकर खुश होता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, वो क्या कहता था, मेरे पास बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे जो है वो मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर है। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट द विंडो, अब एक दिन क्या होता है, विंटर की मॉर्निंग होती है, एंड ही वॉज लुकिंग आउट एज आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर दिख रहा था। एज ही वॉज ड्रेसिंग, बराबर है, वो ऐसे ही देख रहा था, विंडो के बाहर कपड़े पहन रहा था और वो देख रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसको विंटर से हेट नहीं था, नफरत नहीं थी। For he knew that it was merely the spring asleep and the flower was resting, क्योंकि वो जानता था कि अब जो वसंत ऋतु जो है वो स्प्रिंग सीजन जो है वो सो गई है और जो फ्लावर्स है वो रेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए विंटर आ गई है। Suddenly he rubbed his eyes in a wonder and looked. अब अचानक क्या होता है, suddenly he rubbed his eyes, rubbed मतलब मसलना, ओके, अपनी आंखों को मसलता है और देखता ही रहता है। It is certainly it was a marvelous sight, और अचानक उसको क्या दिखता है, एक marvelous sight यानी कि अद्भुत सीन दिखता है। Into the furthest corner of the garden was a tree quite covered with the lovely blossom, वो दूर तक दिखता है कि गार्डन के कोने के अंदर एक झाड़ था और झाड़ जो है उसके ऊपर उसकी जो डालियाँ थी वो अभी तक फूलों से भरी हुई थी, बराबर। इट इज़ कवर्ड विद द ब्लॉसम, इट ब्रांचेस वर गार्डन एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, वो दिखता है कि उसकी जो डालियाँ थी वो हरी भरी थी और चांदी जैसे रंग के फल उसके ऊपर लटक रहे थे। और वो छोटा बच्चा जो था एंड अंडर ब्रेथ इट स्टूड द लिटल बॉय ही हैड लव्ड, और जो उसको बहुत पसंद था, जो छोटा बच्चा अचानक गायब हो गया था वो वहाँ पे खड़ा था, बराबर। अब अचानक उसको देखता है छोटे बच्चे को। डाउन स्टीयर रन द जायंट ग्रेट जॉय, जैसे ही वो झाड़ के नीचे बच्चे को देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। एंड आउट इनटू द गार्डन, और वो दौड़कर कहाँ जाता है, गार्डन के अंदर चले जाता है। ही स्टेड अक्रॉस द ग्रास,
ओके, जो घास को पार कर कर वहाँ पे भाग के चले जाता है। एंड केम नियर द चाइल्ड, और बच्चे के पास चले जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोजर अ फेस ग्रू रेड विथ एंगर, अब जैसे ही वो बच्चे के पास जाता है तो उसका जो फेस होता है वो गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। एंड ही सेड, और वो कहता है, क्या कहता है, हु हेट डेड टू वाउंड थी, वो क्या कहता है कि किसने तुम्हें घायल करने का दुस्साहस किया है, किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की दुष्टता की है। फॉर ऑन द प्लम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ द 2 नेल्स, और वो क्या देखता है, बच्चे के जो हाथ होते हैं उसके ऊपर किसी ने कीले मारने के निशान बनाए हुए थे। कीलों से, नेल मतलब होता है खिली, ओके, कीले जो होते हैं उससे बच्चों को नुकसान, तो उसको देखकर वो गुस्सा आ जाता है। जायंट को बोलता है किसने तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। एंड द प्रिंट्स ऑफ द 2 नेल्स वर ऑन देयर लिटिल फीट, और उसके पैर के अंदर भी 2 कीले के निशान उसके पाँव में भी थे। यू कैन इमेजिन कि वो बच्चा, उसको कितना प्यारा था और बच्चे को नुकसान पहुंचा तो वो गुस्सा हो गया। ने आंसर द चाइल्ड, चाइल्ड उसको जवाब देता है। क्या जवाब देता है, राक्षस उसको कहता है कि भाई तुम मुझे बताओ कि किसने ये सब किया है, बराबर। हु हेट द डेड, उसकी किसकी हिम्मत हो गई। गायन गुस्से में कहता है, टेल मी आई मे टेक माई बिग शॉर्ड एंड स्ले टू हिम, मैं अपनी बड़ी सी तलवार निकालूंगा और उसको मार डालूंगा, मुझे बताओ किसने तुमको ये किया है। ने आंसर द चिल्ड्रन, नहीं, बच्चा क्या बोलता है, नो बट दिस आर द वुंड्स ऑफ लव, ये किसके वुंड है। वुंड का मतलब क्या होता है, घाव, ओके, वुंड का मतलब होता है घाव। ये घाव जो है वो किसके है, लव के है, प्यार के है। हु आर धाव, वो क्या कहता है, हु आर धाव मीन्स हु आर यू। हु आर धाव का मतलब क्या होता है, What does it mean? It means who are you? तुम कौन हो? said the giant. Giant इसको पूछता है. And strange awe fell on him and the knicked before the little child. और क्या होता है, जैसे वो पूछता है कि तुम कौन हो, एक अजीब सा एक डर जो है वो उसके चेहरे के ऊपर आ जाता है, और छोटा बच्चा उसके जो नी होती है, उसके जो घुटने होते हैं उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट, चाइल्ड जो होता है वो स्माइल करता है और जायंट की तरफ देखकर और कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, आपने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने के लिए बोला था। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज तुम्हें मेरे साथ आना है, मेरे साथ गार्डन के अंदर आना है, मेरे गार्डन के अंदर आना है, जो कौन है, स्वर्ग है। ओके, स्वर्ग में कौन रहता है, भगवान रहते हैं। तो एक्चुअली में भगवान उसको खुद लेने के लिए एक बच्चे का रूप लेके आए थे और बच्चा बनकर वो झाड़ के नीचे खड़े थे। एक्चुअली में वो जायंट जो था वो बुढ़ा हो गया था, उसके मरने की उम्र आ गई थी, तो भगवान के रूप में भगवान जो एक छोटे बच्चे का रूप लेकर उसको लेने के लिए आए थे और उसको कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना है स्वर्ग में, मेरे पास भी ऐसा एक गार्डन है जहाँ पे आके तुम खेलना। एंड व्हेन द चिल्ड्रन, अब वो ऐसा बोलकर जो बच्चा जो था जो वहाँ से उसको लेके चले जाता है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इनटू द आफ्टरनून, जब दोपहर का ये इंसिडेंट कंप्लीट हो जाता है। एंड देन आफ्टर, दोपहर के टाइम में जब दूसरे बच्चे थे दोपहर के टाइम में स्कूल कंप्लीट करके जब खेलने आए, दे फाउंड, उन्होंने क्या देखा, द जायंट वॉज लेइंग डेड अंडर द ट्री, जायंट जो था वो मरा हुआ पड़ा था। एंड इट इज़ कवर्ड विथ द ब्लॉसम, और उसको पूरी बॉडी को फूलों से कवर्ड किया हुआ था। यू कैन सी कि भाई ये उसकी पूरी बॉडी जो है फूलों से ढकी हुई, और जायंट जो है वो वहाँ पे मरा पड़ा है। वो छोटे बच्चे के रूप में हकीकत में कौन आया था, भगवान आए थे उसको लेने के लिए, और गॉड खुद उसको लेने के लिए आते हैं और उसको अपने साथ अपने स्वर्ग के अंदर, ठीक है, हेवन मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग के अंदर लेके जाते हैं और उसको अपने साथ रखते हैं। ऑस्कार वाइल्डी ने ये लेसन लिखा है। तो लास्ट में जो सेल्फिश जायंट था वो भगवान के साथ ऊपर स्वर्ग में जाकर बस जाता है और स्वर्ग में ही वो बाद में रहता है भगवान के साथ। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द सेल्फिश जायंट फ्रेंड्स। आई एक्सप्लेन दैट वर्ड टू वर्ड। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इनटू द लेसन। Okay, boys and girls, whatever the question answers are there about this lesson, I will send you through the PDF. Everyone must have to write down that in your notebook. जितनी भी PDF मैं भेज रहा हूँ, whatever the PDF I had sent, everything you have to write down in your notebook. Okay,
I will call you or I will check your lessons anytime. Okay, so you have to write down that in your notebook. It is compulsory to write down in your notebook. Okay, in our next video we will discuss about new chapter, new topic. Okay friends, bye.